प्रचोदया। देवतुल्यायु माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चंद्र कुमार क्रमांक 973 और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री रवि कुमार साहब हैं, मुझे मुकुल गुप्ता साहब हैं और आज हमने पहली बार जीएसटी के ऊपर लिया है, यानी कि 1000 कंप्लीट हो रही है। जीएसटी की पहली क्लास होगी हमारी यहाँ, पहली पाठशाला होगी और वो भी विषय है हमारा इफेक्टिव चेंज इन जीएसटी लॉ थ्रू फाइनेंस बिल 2024 एंड सम इंटरेस्टिंग इशू फॉर अल्टीमेट कंज्यूमर्स। तो अब ज्यादा समय लेते तो आदरणीय श्री रवि कुमार साहब से निवेदन करते हैं कि आज का जो बजट है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। बजट पास तो नहीं हुआ है परंतु जितना भी आया है उस पर हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आदरणीय रवि कुमार साहब। Friends, I welcome you all, and at the outset, my gratitude and my appreciation goes to the efforts of Arvindji. It is, I think, I don't find a parallel in the whole country. The way you're able to grab in the authentic speakers on the subject of even a civil law or the direct tax law or even the Gita or even any other subject you choose. And my heartful thanks to you, the society and the community of lawyers and CAs. We extend a gratitude to you. I think Mukulji and Yogeshji and Chaudhary Sahab, those who I find on the screen, they all would endorse what I say, that we are grateful to you. You've been running this forum from last, I think, more than 3 years now. More than it is now. More than 3 years. 3 साल हो गए. More than 3 years. 3 years. Now, yesterday you had a talk on the direct tax, and today morning you said that we are initiating the GST indirect tax, which is my dear subject. And I am also very proud to say that the speakers of the session are very competent, good friends. Mukulji and his son, Pratik, they are the speaker. They are going to make out the section-wise the insertion of the provisions which have come in. At the outset, once I go for in general, I can say about the GST, when the budget came in, the finance minister, she said about GST that her emphasis is to decrease the tax incidence, reduce the compliance burden, and enhance the revenue of the government. But to say of the revenue of the government, I think it was in the newspapers today that the collection of July 24, this was about 1.65 lakh crores. This is almost up after April 23. This is the highest in collection. And as far as this collection of this July 24 is concerned, this is 11% higher than the last year, July 23. So this shows that the way our economic activities, either in service or in manufacturing, maybe the opposition or the parties may say so, but GST collection is one indicator, one parameter to say that our economy of the country is going on the right path. Now, as far as let me say about, before I touch the provisions or the amendments which have been, which in details Mukulji will and his son would touch section-wise. In generally, I can say when GST came in 2017 July, start the basic, I think once we were actively looking and handling the VAT, and once the VAT with being clubbed into 3 with excise and service tax, there were anomalies about the transaction going to service tax or to excise or to VAT. There were anomalies about it, and the general industry was very happy that you have not to knock the 3 doors or go there for one GST. But those assurances of a good and simple law, I think experiencing them almost now 7 years, I find that those expectations are not coming true. That as far as the provisions of law, you see, there are day in, day out, there are notifications of amendment, and the harsh and we have not been able to regulate the provisions
through the, I think for which the administrative machinery, their psychological and their mental attitude has to be tuned. But those who deal in GST, they can say that the procedure hassles which we experienced in VAT and in trade tax earlier, and this is coming to not to the expectations of the industry. I think the learned speaker Mukulji and those who deal in GST extensively, and the Bageshji and Khatkesa from Nagpur, they would agree that they say now coming before touching all the, I can say this good part have been that they've reduced the quantum of the pre-deposit they have to make in this budget. They have the maximum also and the percentage also. Now, once the department or any department official doesn't agree to your term, they would say, sir, if you don't agree, maybe you have enforced, but once you go in appeal, you have to make a pre-deposit. Then if you win, we would go in straight appeal. You see the amount. Then you are put to a squeeze that you have to agree to. These provisions of 73 and 74 penalties, these have been showed, which was always hanging on the industries ke aap 73 notice lagayenge, 74 notice lagayenge karke. I think this budget they have put in, they are trying to replace it by 74A, that once a notice is given, whether there is fees, whether the a fraudulent thought process of those who committing a mistake is there or not. The 74A, I have my doubts. This may be used in the advantage of the business community, or those who are having the GST. You are using it, or in the absence of, in the favor of the assessees. Why recollect couplet to this के वो है ना कत्ल हुआ है हमारा किश्तों में कभी कातिल बदल गए कभी खंजर बदल गए. Ultimately the sufferer is the way we are handling this whole. You know why I feel that in larger scale why FDI is not coming. You see in the provisions of the direct tax laws, many of the TDS penalties, yesterday it was discussed, must have been discussed. I was not participating in that, but I am sure that the provisions which were putting prosecution for small defaults of the TDS, there is a prosecution. Why FDI is not coming? Why a foreign investor is scared? They say, you keep on changing your laws. अभी देखिए 3400 crore की penalty की invoices किसके ऊपर लगा रहे हैं, or for the export you are making, उसके लिए they are making the misinterpretation of that. Now see I don't go, because I feel that point-wise, starting there have been amendments to the sections are well aware. Section 9, 10, 13 till 171, they have made the small amendments as far as the ITC's claim is concerned, as far as the refund claim is concerned, as far as the filing of the returns is concerned, and small penalties also. They have added 3 new sections also, 11A, 74 and 128A. This precisely, my friend Mukulji, very eminent and my colleague in the profession, who is a big name in the AFT and big name in the profession of, as far as the dealing is GST, followed by his son also, very competent. I met him also. I was so impressed to see the way he has taken over and puts in the hard work to come out in the profession, and particularly in the GST. I compliment both the fathers. They would take up the individual provisions of now coming very importantly, which I have personally also been experienced with a client, the taxability of extra neutral alcohol. There was a decision, I think I discussed that in one of the seminars also here, that there was a giant distillery there was a Allahabad High Court decision. This was in 21. We said that no, once you are talking of the, what was the basic of structure of GST? Any intermediary or any raw material which is going to be used and put into the process of production, is a raw material and would be taxed to GST. You can't go. There are some exceptions of the liquor industry, of the fuel, of the petrol, diesel and all that. Barring that, any raw material or any intermediary material which is to be used for the purpose of
producing is something would be covered by GST only. Now, Jain distillery decision was there, Allahabad High Court, and there were, right, it was 21, the provision GST came in 17, 17 से 21 4 साल तक there was an anomaly. Many of the distilleries, they were charging EST, some were charging VAT. VAT audit for the liquor part was going on. For export, they were getting the refund. Now, this was an anomaly, and we were very sure the SLP was filed by the lobby of the, I say, lobby of the distillery associations, which has prevailed upon, I feel, rightly or wrongly. I have put my question mark to that in how come the finance minister should come out with a finding that ENE shall be outside the ambit of GST. It is not in consonance with that decision of Jain distillery, neither it is in consonance with the spirit of GST. It is contrary to that. If this is so, then it would follow suit in many other items also. People say, now what would happen? I know cases where they've been, during this period, they've been paying GST rightly because it was the spirit of Jain distillery. They've been paying. No. Now, what would happen? Those who have paid GST, they say, no, it is outside ambit. So what would happen? They would now claim the VAT on that. Now you have to pay VAT on that, not GST on the ENB now onward. Those who have paid VAT, okay. But those who have rightly adhered to the system of law, to the Jain distillery, to honor the spirit of the Jain distillery case of Allahabad High Court, they have paid. Would they claim the GST on that? So I feel, for administrative point of view, they should put status quo on that. Those who paid by this date, अब 23 को जो आया उसके बाद में, whatever comes the status quo when this bill is going to be approved, this will happen. So I think it's also proverbial that if it is simple, it cannot be India. This is also proverbial. Economists said about it that the laws in India, because see we were calling of the income tax provision, section 234A, clarification A, double A, triple A. Why don't you make it simplify? They have said we simplify. So I think one reason that we have to make a simpler law. See the ticklish they have made, every third day they make the amendments into the law. That's something not. We should make a simpler law. Now, one very happy note is that the establishment of the tribunal benches. ये कहाँ की बात है? 2017 में आपने, उसके बाद में आपकी अपीलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं. 17 कितने साल बीत गए? 7 साल you are able to take a decision to establish, to show that tribunal is where you go to seek the law, to relieve to the to a person who has, to the aggrieved person. What sort of democratic setup is, what sort of administrative machinery that you are not able to take a decision? उसी बात पे फंसे हुए हैं कि डिपार्टमेंटल मेंबर होगा, कि टेक्निकल मेंबर होगा, वो 3 होंगे कि 2 होंगे. There are decisions of the court. They go to the court. The government should see how much time they have taken. Now finally they say in UP, happily in Ghaziabad also we have a branch. So Noida has to come to Ghaziabad, then we have a branch in Lucknow and Allahabad also. Now tribunal shall be there. Now they have said delay would be condoned. But delay to condone hogi. What has happened in between? Now you have normally the penalties pertain to the logistics. लॉजिस्टिक्स में पहले क्या होता था मुकुल जी कि आपकी बुक साउंड बंद हो गया, आपके साउंड खोलिए. अब ठीक है, I'm with you. जी. मैं थोड़ा अनाड़ी हूँ, मैं गुड़गांव में ही हूँ अभी. I couldn't move, so I was getting late. So I thought once I have committed to you, I'm in Gurgaon only and not in my place. Yeah, I'm at my daughter's place. Okay. Now we were talking about the tribunal. Tribunal में क्या है? Most of the litigation was about the logistics one. पहले क्या था logistics में? आप अगर आपकी 10,000 रुपए की पेनल्टी भी है तो आपकी किताबें रिजेक्ट हो जाएंगी. अभी क्या है? There is no आप कहते ट्रांसपोर्ट में जमा कर दी. Most of the first appeals where we have good point to win. They were not first appeal. You're not getting any benefit at the first for reasons of whatsoever. You can understand the reasons for not accepting the appeals. Now, even earlier to
means now all that money stands deposited. No, means they say we don't want to contest. Am I right, Mukul ji? They say we don't want to contest. Tribunal आता है तो आता रहेगा. So now tribunal constitution again, एक सिंगल बेंच की बहुत बड़ी पावर्स है वहां पर. अब सिंगल बेंच में किस तरह के साहब आएंगे, उनकी कितनी कुछ समझ होगी और क्या उनका सोच होगी, क्या उनकी इंटेग्रिटी होगी, क्या उनका प्रैक्टिकल व्यू होगा. We have been experiencing the tribunal benches for last so many years. How they function, how the results, positive results, even for good cases, can be given. So I think, besides the administration of law, the psyche of those who are administering the law, the officers of the department, I personally feel that whatever whatever their way of working and their humility and their approach to the subject, even there's a deterioration, right? What was in the trade tax and what I personally, I would put it on record that they feel more safe and comfort that government is with them. Why? We have promised, GST was promised that we are bringing, once you bring in any amendment or any new law, the person who has to, means the GST number holder, you give somebody in a platter and you have to prove that you are giving something in platter. Why would eat? The platter you are coming in is a better recipe like that and all that. It could happen. This should happen. This is not happening. Means, and we are comparing. Means whatever was in the earlier in the previous law is not coming through. So good note that the pre-deposits have been reduced. The tribunals are coming. SLP also limits are being reduced. I've discussed already about the as far as the ENA is concerned. This is my concern about it. Now assessment of every year is being issued now. Now they say you file the return. How much time it takes for the compliance? You have full now compliance by the corporate. They are perfectly doing all. This is a automatic reconciliation. Why they say they would make the assessment? अब जैसे इनकम टैक्स में हार्डली 2 या 3% मुकुल जी स्क्रूटनी होती है. ऑल आर यू फाइल द रिटर्न, दे आर एक्सेप्टेड. दे हैव नॉर्म्स कि आपने क्रेडिट नोट से इतना किया, कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, आपका कैपिटल गेन है, इस तरह की कोई चीज आती है तो दैट इज ओनली इट इज पॉसिबल दैट दिस इज now artificial intelligence notices, notices are being issued, and when you ask the officer AI से notice आया, अरे भाई AI से आया तो आप तो explain करेंगे. Small mistakes, they would say no, we are not going to accept. So I think more than and Mukul would explain you starting from that, say that the mindset of the officers, those who are handling it, it has to be pro business and pro friendly, then only things come in. I think 15-20 minutes you have, we can, I think, keep on speaking till the cows come back home. It's a very long subject and I have lost something in my heart to say, but I think I would be doing injustice to Mukulji because he has to touch all the sections point-wise and tell that precisely when the even there is they have brought in certain schemes to reduce the interest and penalty, and then the procedure to get the ITC. These provisions starting from this budget says 9, 10. I think there are about 20 sections they have amended small section wise, which all you must have read. The new sections in IGST also have brought in. So I feel I've covered almost what I wanted to say about the RWA. This so should I now hand over? Should I shift to the learned speaker Mukulji to take up the subject? My introduction to the subject. I go with a note that the dealer, the GST holder, is disappointed as far as the administration of the law is concerned. It is not in tune what was promised to them, and they should, the mindset of the officials, those who are dealing with that, they should be properly tuned and they should be educated to come on smooth and not to misinterpret the provisions. And with these words, I thank you for giving me this opportunity, and I hand over the
session to the learned speaker Mukulji and his son to take over the provisions section wise. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रवि कुमार साहब, आपने बढ़त किया। अब मैं आदरणीय मुकुल गुप्ता साहब से निवेदन करता हूँ कि अपना उद्बोधन जारी करें। मुकुल जी को तो दोनों भाषाओं में अच्छा कमांड है, हिंदी में भी इंग्लिश में, परंतु हिंदी में अच्छा बोलते हैं। नहीं, मैं मिक्स में बोलना, कहीं कोई इंग्लिश के वर्ड्स यूज होंगे तो मैं आपसे परमिशन चाहूंगा, लेकिन हिंदी इंग्लिश इंग्लिश चलिए आदरणीय अरविंद जी, उनका ये प्रयास इतना सफलता से चल रहा है इतने दिनों से, मेरी उनको शुभकामनाएं। ये 1000 पूरा करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा हम लोगों को लगेगा। और मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, नैब साहब भी और बहुत लोग हैं आज जो शुरू से जुड़े हुए हैं, डे 1 से। और नैब साहब ने तो बहुत ही जबरदस्त इसमें कंट्रीब्यूशन अपना दिया है, समय का और हम लोगों का ज्ञान वर्धन करके। बहुत अच्छा, कल बहुत बढ़िया सेशन नैब साहब का रहा, तो बहुत अच्छा लगता है। आदरणीय रवि कुमार जी ने आज प्रस्तावना बांधी है, बड़ा अच्छा, मेरा काम बहुत सरल कर दिया। पूरे सीनियर की आपने पूरी भूमिका निभाई है, सारे प्रोविजंस को समराइज करके बहुत अच्छे से आपने ऑडियंस के सामने डाल दिया है, तो मेरा काम बहुत आसान है। समय जरूर दिया, ठीक है, समय कोई बात नहीं है, अच्छा है, मेरा काम हल्का हो रहा है। तो जहां तक जीएसटी का सवाल है, मैं बहुत सी बातों से जो रवि कुमार साहब ने कही बिल्कुल सच है। देखिए, जो आपने एक शेर बीच में कहा, शेर तो मुझे नहीं आता, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जीएसटी जो है वो कंज्यूमर बेस्ड टैक्स है, अल्टीमेट टैक्स है, कंज्यूमर को जाके देना पड़ता है। तो यहाँ जो कत्ल हो रहा है वो हर एक हिंदुस्तानी सिटीजन का हो रहा है, कोई बिजनेसमैन अपने पॉकेट से नहीं देता, और एक्सपेक्टेड भी नहीं है इस लॉ में, क्योंकि ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। इसका जो स्ट्रक्चर है या जो इसकी इथॉस है वो स्वयं में ये है कि कंज्यूमर को देना है अल्टीमेटली टैक्स, उसी पे जाके पड़ता है। जो आईटीसी का बेनिफिट और उस पूरी चेन में दिया गया है, वो इसी भावना से दिया गया है कि अल्टीमेटली कस्टमर को जाके ये टैक्स लगे। तो हर एक प्रोविजन जो आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट में लाए हैं, फाइनेंस बिल 2024 से, उसका कोई ना कोई इफेक्ट हम प्रत्येक नागरिक पे पड़ता है, और सबसे ज्यादा पड़ता है हमारी गृहिणियों, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे घरों की फाइनेंस मिनिस्टर्स तो वही है, उन्हीं को बजट बनाना है, उनका बजट सबसे ज्यादा हिलता है जब टैक्स बढ़ता घटता है। तो अब जैसे अभी बात हो रही थी कि इंश्योरेंस पॉलिसीज, इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स की बात 18% लगा रहे हैं, अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ के ऊपर टैक्स होता है, ऐसी ऐसी चीजों पर टैक्स लग रहा है जिनकी आपने कभी सोचा भी नहीं, जैसे कि इन्फोसिस जैसी कंपनी, अभी 3 दिन पहले उनको 32,640 करोड़ का शो कॉज नोटिस आया। शो कॉज नोटिस देने से पहले ना कोई इंक्वायरी है, ना कोई प्री नोटिस है, ना कुछ है, गजब की समन देते हैं तो उसमें इलीगलिटीज हैं, समन नहीं देते हैं तो आराम से वो 32,640 करोड़ का नोटिस एक साथ पकड़ा देते हैं कि आप 2 तारीख को जमा करें। अरे गजब की बात है, अरे 1 तारीख को नोटिस आता है और 2 तारीख को कहते हैं सब 32,640 जमा करें। Who has that fund? Even government do not have that fund. It's such a large fund. और ऐसा नोटिस देते हैं ऑफिसर ने जो अपनी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा भी नहीं। ये तो बात हो रही है।
26 जून 2024 को जस्ट करीब करीब 1 महीना पहले गवर्नमेंट इसको क्लैरिफाई कर चुकी है कि जो सर्विसेज विदेश से भारत में आ रही है दे वुड नॉट बी टैक्सेबल। जीएसटी काउंसिल का डिस्कशन हुआ है, उस पर क्लैरिफिकेशन आ गया और उन ऑफिसर महोदय ने या उनके सीनियर्स ने, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम ये है कि अगर आप शो कॉज नोटिस देंगे तो कमिश्नर की परमिशन लेंगे, प्रिंसिपल कमिश्नर की लेंगे, यहाँ तो नोटिस खुद एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया ने दिया। क्या उन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस का वो नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा जिसमें ये क्लैरिफिकेशन दे दिया था? क्यों इतनी अफरा तफरी बनी हिंदुस्तान में? न्यूज का फर्स्ट आइटम बन गया। क्यों कर्नाटका गवर्नमेंट को विद इन 24 आवर्स वो नोटिस वापस लेना पड़ा? क्योंकि मैं तो कहता हूं वो ज्यादा समझदार है कि उन्होंने 24 घंटे में नोटिस वापस ले लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ने के लिए इंफोसिस हाईकोर्ट का रास्ता देख रहे हैं। इसी तरह का एक नोटिस हमारा भी एक क्लाइंट है बेंगलोर में, उनके पास आया। 2 दिन से हम लगे हुए हैं। रिजल्ट क्या होगा? कुछ नहीं। कितना लीगल एक्सपेंसेस हो जाएगा, कितनी अफरा तफरी मच जाएगी, सीईओ सीएफओ सारा का सारा उनका पैराफर्नेलिया अपने को बचाने में लगा हुआ, जबकि टैक्स लगना नहीं है, टैक्स नोटिस आना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, एक रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ द टैक्स बाय मुकुल जी, सॉरी टू से, मतलब हम लोग अपना बजट पे ना रखें, अपना फोकस ना जो बजट है उसी पे रखते हैं अपना। मेंबर, क्योंकि रवि जी ने ये बात शुरू की थी, मैंने कहा इसका मैं कि ऑफिसर्स को कि जो मेंटलिटी है उसको हमें ठीक करने की जरूरत है। जब तब जाके हम जीएसटी के बेनिफिट का या जो प्रोविजंस बजट में आ रहे हैं, जो कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें खराब हैं, हम उनको ठीक कर पाएंगे और अच्छे से चल पाएंगे। चलिए अब हम सीधे बजट की चर्चा पर आते हैं। बजट स्पीच दी जाती है पार्लियामेंट में माननीय फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा हर साल। इस बार भी दी गई। गुड्स एंड सर्विस टैक्स से इस समय गवर्नमेंट का रेवेन्यू अगर देखें तो एक सिंगल टैक्स से ये सबसे ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट कर रहा है, इवन इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स को मिला दें तो भी। और फाइनेंस मिनिस्टर ने इसके बारे में जो अमेंडमेंट 36 बेसिक अमेंडमेंट्स इसमें किए फाइनेंस के लिए, एक का भी जिक्र उन्होंने नहीं किया। इसकी इतनी भी महत्ता नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर साहब के दिमाग में कि कम से कम एक 2-3 मिनट में कुछ एक जनरल प्रोविजंस, ठीक है, पब्लिक के जो फेवरेबल प्रोविजंस थे उनको बताते, उसका भी जिक्र नहीं किया। हम लोगों ने ये सोचा जब हम सुन रहे थे बजट स्पीच कि चलो जीएसटी में तो चूंकि जीएसटी काउंसिल के डिसीजंस होते हैं, ऑलरेडी अभी 26 जून को सारे नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, 22 जून की मीटिंग के बाद शायद बजट में नहीं है, बजट में कोई चेंज नहीं, बड़े आराम से बैठ गए। और जब फाइनेंस बिल आया उसको खोल के देखा और खटाखट के क्लॉज 110 से 146 तक 36 चेंजेस सीजीएसटी में, अगर मैं बात करूं बेसिकली सेंट्रल जीएसटी एक्ट में जो प्रपोज किए गए अमेंडमेंट्स इस बिल के द्वारा, वो 36 हैं। क्योंकि समय की थोड़ा सा पाबंदी है तो मैंने कुछ चीजें चूज की हैं आप लोगों से डिस्कस करने के लिए। जो बहुत टेक्निकल इश्यूज हैं उनको या बहुत रूटीन के इश्यूज हैं उनको मैंने
अभी इस आज के डिस्कशन में हम लोग नहीं ले रहे हैं। जो पहला चेंज है वो रवि जी ने बड़े अच्छे से बता दिया। एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसको उन्होंने सीजीएसटी यानी जीएसटी के परव्यू से बाहर निकाला। इसी तरह के अमेंडमेंट्स जो हैं, सिमिलर अमेंडमेंट्स आईजीएसटी में और जीएसटी में किए गए हैं। इस रिलीफ कह सकते हैं अगर इसको सिर्फ इसी मुद्दे को देखा जाए, बट मैं कहता हूं कि ये बहुत बड़ी एक दुविधा क्रिएट करी हुई है लिकर इंडस्ट्री के लिए, जैसा कि रवि साहब ने भी थोड़ी देर पहले हम लोग को बताया। दूसरा अमेंडमेंट इन्होंने किया, जो कंपोजिशन स्कीम यानी जो छोटे डीलर्स होते हैं जो 1 करोड़ तक की टर्नओवर जिनकी होती है, उनके लिए कंपोजिशन स्कीम यदि कोई व्यापारी गलती से चूज कर लेता है और वो उसमें जो कंडीशंस और जो पाबंदियां दी गई हैं उनकी वजह से वो चूज नहीं कर सकता, सेक्शन 2 में वो 10 में वो फॉल नहीं करता, तो उस पर पहले पेनल्टी लगाने का प्रोविजन नहीं था। अब ये उसमें अमेंडमेंट्स के द्वारा उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाएंगे यदि वो किसी वजह से गलती से कंपोजिशन चूज करके और कंपोजिशन का बेनिफिट लेता है तो ये एक एडवर्स चीज छोटे डीलर्स के लिए मैं कहूंगा वो है, क्योंकि मार्जिनल डीलर ही ऐसे होंगे जो 1 करोड़ से के आसपास की टर्नओवर के होंगे जो ये गलती कर सकते हैं। और बहुत सी गलती ऐसी होती है जो मेलाफाइड नहीं होती, किसी भी वजह से, इग्नोरेंस में, गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से, बहुत सी ऐसी वजह होती हैं, तो उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं, पेनल्टी तो लगनी लगती। एक बहुत ही जबरदस्त चेंज किया है और ये देश में कोई इसके लिए आवाज नहीं। रवि जी ध्यान दीजिए, सेक्शन 11A जीएसटी में नया इंट्रोड्यूस करके लिया है। और किया क्या है इसमें? किया ये है कि एक वो पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ली या स्टेट गवर्नमेंट्स ने ली जिसमें कि लॉ को एक तरफ रख दो और जो हम चाहेंगे वो करें। मैं बिल्कुल एग्जैक्टली यही इसका होने वाला है। क्या किया उन्होंने? उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यापारी कम टैक्स देता है या नहीं टैक्स देता है बिकॉज ऑफ ए जर्नल प्रैक्टिस adopted by him, तो गवर्नमेंट उस जर्नल प्रैक्टिस को तवज्जो देते हुए, उसको मानते हुए, उसका टैक्स जो उसके ऊपर वाजिब होना चाहिए था इन अकॉर्डेंस टू द प्रोविजंस ऑफ दिस लॉ, वो माफ कर सकते हैं। क्या होने जा रहा है देश में? थैली राज। क्या होगा इसका इफेक्ट? क्यों ऐसी चीज कर रहे हैं कि स्कैम्स जनरेट हो? उन्होंने इसके बहुत स्केर्सली कोई बहुत
तो फिर तो बात ही कुछ नहीं, कुछ भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चेंज किया गया सेक्शन 13 में, वो आरसीएम के प्रोसीजर में चेंज किया गया कि आरसीएम जो सर्विसेज, और ये सिर्फ सर्विस की रेस्पेक्ट में है, गुड्स की रेस्पेक्ट में नहीं है। अगर कोई व्यापारी कोई सर्विस किसी अनरजिस्टर्ड व्यापारी से लेता है, तो जो रेसिपिएंट है उसके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है कि वो इनवॉइस रेज करे और उसका वाजिब टैक्स पे करके आईटीसी की जो चेन है उसको वो वहां से क्रिएट करे। तो उसमें टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के इश्यूज बनते थे कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पर माना जाए कि सर्विस की ये लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। उसको गवर्नमेंट ने यहाँ क्लैरिफाई कर दिया कि जब आप इनवॉइस जारी करेंगे, इनवॉइस कब जारी करेंगे उसके लिए प्रोविजंस सेक्शन 31 में डाले गए हैं। तो उसके हिसाब से जब आप इनवॉइस जारी करेंगे उस दिन रिकॉन हो जाएगी आपकी ट्रांजैक्शन को आरसीएम की दिखा के और टैक्स जमा कराएंगे। तो एक कंप्लायंस को क्लैरिफाई करने के लिए एक अच्छा मेजर ये लिया गया है। अब एक ये अमेंडमेंट किया गया सेक्शन 16। सेक्शन 16 जो है सबसे डिबेटेबल सेक्शन मैं कहूंगा पूरे जीएसटी एक्ट में। इनपुट टैक्स क्रेडिट की अवेलेबिलिटी, कैसे उसको अवेल करें, क्या एलिजिबिलिटी बनेगी। तो यहां पर दो सेक्शंस इन्होंने सब सेक्शंस और ऐड किए, जिसमें उन्होंने एक सेक्शन तो मैं कहूंगा कि एक छूट देने का है, बट वो छूट दी जा रही है उन लोगों को जिन्होंने गलती की और जो टैक्स जमा कर चुके, जो इंटरेस्ट पे कर चुके, पेनल्टी भी पे कर चुके, उनको कोई रिफंड, कोई एडजस्टमेंट, कोई उनको क्रेडिट मिलने की बात नहीं। यानी फायदा किसे हो रहा है? जो नॉन कंप्लायंट डीलर, जिन्होंने अपनी रिटर्न्स 2017 से लेकर 2021 तक किसी वजह से भी गलत फाइल की और उसका टैक्स और डिक्लेरेशन 30 नवंबर 2021 को जाके, यानी जुलाई 17 से लेके और मार्च 21 तक की अगर कोई गलती थी इनपुट टैक्स डिक्लेरेशन में, आपकी रिटर्न्स में, तो अगर आपने वो 30 नवंबर 2021 तक उसको प्रॉपरली डिक्लेयर कर दिया है तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम ले सकते हैं। ये एक प्रोविजन लेके आए, बड़ा पॉपुलर रीजन प्रोविजन है, फायदा होता है लोगों को। बट इसका प्रभाव उन डीलर्स पे पड़ता है जो कि शुरू से कंप्लायंट हैं और ठीक से काम करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम डे वन। इसी तरह से एक प्रोविजन और पॉपुलर प्रोविजन लाए कि अगर किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है परंतु वो रिवोकेट होता है या अपील से ठीक होता है, तो अगर कोई टैक्स इनवॉइस उसने रिवोकेशन की रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन की डेट तक का डाला हुआ है तो वो उसका क्लेम आगे पास ऑन कर सकता है यदि उसका रिवोकेशन हो गया या अपील में उसका रजिस्ट्रेशन रेगुलर कर दिया गया, तो वो उसका फायदा उसको मिल जाएगा। ये भी एक प्रोसीजरल चेंज है।
एक ये बड़ी दुविधा होती थी पहले रवि जी की सेक्शन 129 में या 130 में जो सिक्योरिटी या पेनल्टी जमा करते थे उसको वो रेगुलर टैक्स में आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता। इसी तरह से सेक्शन 74 के अंदर यदि फ्रॉड का केस है तो उसमें यदि उसके एम्बिट में लाके यदि कोई टैक्स पेयर टैक्स जमा करता था तो उसका बेनिफिट आईटीसी में प्रदान नहीं होता था। एक बार सेक्शन 16 सब सेक्शन 5 में क्लॉज आई में लगाया, तो वो एक तरह से काफी इस बार गवर्नमेंट ने लिक्विडेट कर दिया। यानी कि अब अगर मोबाइल स्क्वाड में कोई व्यापारी पैसा जमा कराता है पेनल्टी का, सेक्शन 130 की पेनल्टी भी लग जाती है, वो पैसा जमा कराता है, अपने गुड्स रिलीज करा लेता है, गुड्स को डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता है, तो ऐसा पैसा यदि वो अपनी रिटर्न्स के साथ डिक्लेयर करके उसको आईटीसी के बाबत यानी कि उसको एक नॉर्मल टैक्स की तरह से क्लेम कर सकता है। तो ये सेक्शन 129, 130 और सेक्शन 74 से जो लिमिटेशंस बनी हुई थी वो हटा दी गई। एक अच्छी पहल है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि व्यापारी को मोबाइल स्क्वाड में हैरेसमेंट करके उससे जबरदस्ती टैक्स जमा करा लिया जाता है। व्यापारी कोयम्बटूर का है, वो जाके जो है वो देहरादून में टैक्स जमा करा रहा है, तो बहुत से लोग उसको कंटेस्ट नहीं कर पाते थे। अपनी बात ठीक होते हुए भी वो अपील में नहीं जा पाते थे, आगे उनको रिलीफ नहीं मिलता था, तो वो टैक्स जमा उन्होंने अमाउंट जमा कराया, माल चुरा के ले गए, लेकिन उनको उसका एज ए टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता था। तो वो अब वो एज ए टैक्स उनको बेनिफिट मिलेगा। ये एक अच्छी बात उन्होंने की है। इसके बाद 116, 17, 18 ये सब रेगुलर चेंजेस हैं, मैं इनको टच नहीं करता हूं। एक चेंज इन्होंने किया है कि टीडीएस जो व्यापारी जमा करते हैं जीएसटी में, उनको पहले रिटर्न फाइल करनी होती थी, लेकिन अब उनको मंथली रिटर्न फाइल करनी है और वो महीने पे भी रिटर्न फाइल करनी है जिसमें उनकी नील लायबिलिटी है टीडीएस। ये कंप्लायंस का एक मैटर है, तो दे हैव टू फर्निश एवरी मंथ द मंथली रिटर्न फॉर टीडीएस। इसके बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 131 तक सब रेगुलर हैं। ये रेगुलर मैं बता दूं आपको इस तरह से हैं कि जो मेजर चेंज में आगे आपको अभी बताने वाला हूं सेक्शन 73, 74 और 74A के बारे में, उनको रेगुलराइज करने के लिए, क्योंकि 73, 74 का इफेक्ट जहां जहां इस एक्ट के दूसरे सेक्शंस पे पड़ता था उसको उन्होंने वहां अमेंड किया है। 73, 74 को रिप्लेस करके 74A वहां रख दिया है। उसका कोई प्रभाव हमारी सोच पे नहीं पड़ेगा, हमारे डिसीजंस पे नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं कहता हूं कि वो एक रेगुलर टाइप के अमेंडमेंट्स हैं। एक जो बहुत ही चर्चित प्रोविजन है और जिसका कि यूज कह लीजिए या मैं कहूंगा मिस यूज हमारे जीएसटी डिपार्टमेंट के बहुत से ऑफिसर्स कर रहे हैं, उसमें एक अमेंडमेंट की। क्योंकि होता ये था कि जीएसटी के ऑफिसर के हाथ में ऐसी पावर दे दी सेक्शन 70 के द्वारा कि वो किसी को भी समन कर सकता है, व्यापारी के किसी भी ऑफिसर को, तो वो सीधे सीएफओ और सीईओ को समन जारी करते थे। अब एक बड़ी कंपनी में चूंकि अलग अलग काम अलग अलग ऑफिसर्स देखते हैं,
अकाउंट्स टीम अलग होती है, टैक्सेशन टीम अलग होती है, मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन सब अलग अलग होता है। तो सीएफओ या सीईओ कहते थे भाई ये तो हमारा काम नहीं है, हम जो कंसर्न जनरल मैनेजर है, जो सीनियर मोस्ट आदमी है, हम उसको भेज रहे हैं, वो कर लेगा। नो सर, आप ही आइए, क्योंकि पैसा उनसे मिलना, पैसा की अल्टीमेट पावर तो उनसे है, तो उनको जब तक हैरेसमेंट नहीं किया जाएगा तब तक कैसे मिलेगा। तो उसको कर्टेल करते हुए अब ये कर दिया कि समन अगर दिया गया है सीएफओ को या सीईओ को, तो वो अपने ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा भी अपना रिप्रेजेंटेशन जीएसटी अथॉरिटी के सामने कर सकते हैं। हालांकि एज पर द रिप्रेजेंटेशन एक्ट पहले भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि जीएसटी में ये स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं था, इसलिए इसका मिसयूज करता था ऑफिसर। अब वो यहां पर इसका मिसयूज नहीं करता। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत गजब का इन्होंने वर्ड, सबसेक्शन 1A में इन्होंने लगाया बाउंड टू अटेंड, यानी आपने एक दिन का टाइम दिया, कल परसों की बात है, हमारे एक एसएससी को एक दिन का टाइम, और कहते साहब यू हैव टू कम, और कहता था मैं तो अमेरिका बैठा हूं, मैं कैसे आ जाऊंगा, आप मुझे टाइम दे दीजिए 10 दिन का, जब मैं आऊंगा उसके बाद। नहीं साहब आप आइए। तो बाउंड टू, अब ये एक्ट में भी लिखा है, ये अमेंडमेंट अब किया गया, दिस इज वेरी डैमेजिंग। अगर चलिए आपने 15 दिन का भी उसको टाइम दिया अपने समन में आने के लिए, और वो किसी वजह से उस दिन नहीं आ पाया, उसकी पूरी इंटेंशन थी आने की, वो नहीं आ पाया, बाढ़ आ गई, ऑफिसर को तो चांस मिल गया उसका, उसके अगेंस्ट पेनल्टी लगाने का, 10 बार की पेनल्टी है पर डे। तो इस तरह की जो लैंग्वेज यूज हो रही है जीएसटी लॉ में, एक्ट में, वो अपने आप में अच्छी नहीं है। उसको उसके बारे में विचार करना चाहिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात मोदी जी भी करते हैं, निर्मला सीतारमण जी भी करती हैं, बट जब अमेंडमेंट आता है पार्लियामेंट में तो ईज ऑफ डूइंग के की बात नहीं सामने रह जाती है। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, 7-8 मिनट हैं हमारे पास मेरे विचार से, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन पे आ रहा हूँ, और ये मेरे ख्याल से अंतिम प्रोविजन ही होगा, अदरवाइज 1-8 मिनट में और कर लेंगे। तो सेक्शन 73-74 क्या था, क्योंकि यहाँ मेरे ख्याल से एडवोकेट्स कम हैं, बाकी लोगों की जानकारी बता दो। 73 में प्रोविजन ये था कि जहां रेगुलर टाइप की कोई कंप्लायंस ठीक नहीं हुई, या किसी वजह से टैक्स कम लगा या टैक्स नहीं लगा, तो वहां सेक्शन 73 में कार्रवाई करते हुए असेसमेंट एडजुडिकेशन करके और टैक्स की लायबिलिटी क्रिएट कर दी जाए, और उसपे जो इंटरेस्ट और पेनल्टी लगता था, रिड्यूस्ड रेट पर पेनल्टी लगती थी, वो उस पर लगा के एडजुडिकेशन कर दी। 74 में ये था कि जहां फ्रॉड, मिस एप्रोप्रिएशन, इस तरह के चीजें, मेलाफाइड इंटेंशन नजर आती थी, वहां सेक्शन 74 का इस्तेमाल करते हुए एडजुडिकेशन की प्रोसीडिंग्स की जाती थी। उसमें पेनल्टी के अमाउंट भी ज्यादा होता था, और जो मेजर फर्क था वो ये था कि 73 से 74 की एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स करने के लिए 1 साल का एडिशनल टाइम मिल जाता था ऑफिसर्स। अब 73 और 74 के जो भी डिस्टिंक्शंस थे उनको खत्म करके एक सेक्शन कर दिया गया, 74 कैपिटल ए। 73-74 के जो ऑपरेशंस थे वो 31 मार्च 2024 तक के लिए सीमित कर दिए गए।
73-74 में एक नया सब सेक्शन डाल दिया गया कि इसका ऑपरेशन 31 मार्च 2024 तक समाप्त हो जाएगा, यानी ऐसा फाइनेंशियल ईयर 23-24 के बाद इसका उपयोग नहीं होगा। अब किसका उपयोग होगा? उस 74 कैपिटल ए का उपयोग होगा, जिसमें कि दोनों तरह के केसेस, चाहे वो फ्रॉड का केस है या बिना फ्रॉड का केस है, वो एक ही टाइम पीरियड में यानी 42 महीने में तक उसका नोटिस जा सकता है और फर्दर 12 महीने तक उसका असेसमेंट किया जा सकता है। यानी सारे केस एक साथ ही असेसिंग अथॉरिटीज, एडजुडिकेशन अथॉरिटीज, जुरिडिक्शन अथॉरिटीज, प्रॉपर ऑफिसर्स सारे एक साथ ही सब केस करेंगे। मेरे विचार में ये डिस्टिंक्शन जरूरी था। एक तो ऑफिसर्स को 1 साल एडिशनल टाइम, कंसंट्रेशन से काम करने का टाइम उन केसेस पे मिल जाता था जो फ्रॉड के हैं, जहां वाकई जानबूझ के एसएससी ने टैक्स की चोरी की है, कोई मिस एप्रोप्रिएशन किया, तो उसमें एक पुख्ता केस बना के वो आगे बढ़ सकते थे, पुख्ता एससीएन दे के उसका कंटेंशन लेके और फिर आगे एक फाइनल असेसमेंट ऑर्डर, एडजुडिकेशन ऑर्डर कर सकते। तो वो टाइम पीरियड जो 1 साल का आगे था, वो मर्ज करने के बाद ऑफिसर्स का काम एक साथ पूरे पीरियड के लिए बढ़ जाएगा। उनका कंसंट्रेशन, जो फ्रॉड के केसेस को गवर्नमेंट कहती है कि सब हम इसको खत्म करना चाहते हैं, उस पर जब कंसंट्रेशन कम होगा तो वो वीकली प्रोवाइड, मतलब उसमें वीकनेस रह सकती है। तो that would not be good for the economy of the country, that would not be good for the citizens of the country, for the revenue of the country. So ये जो दोनों का मिक्सचर किया गया, मर्ज किया गया है, मेरे विचार से बहुत अच्छा प्रोविजन नहीं है। एक चीज ये बता दूं कि 73-74 के जो प्रोविजंस थे, वही सिमिलर प्रोविजंस ऑलमोस्ट 74 ए में प्रोसीजर वाइज रखे गए। तो उनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसमें जो पहले लोगों को उसके बाद 74 के प्रोसीजर या 73 के प्रोसीजर थे, उसी तरह के प्रोविजन प्रोसीजरली फॉलो करने हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, और उन्हीं दिक्कतों से एसएससी को गुजरना है ड्यूरिंग द एडजुडिकेशन प्रोसीजर्स। एक रवि साहब ने बड़ा अच्छा इसमें डिस्कस किया था अपीलों के बारे में, कि अपील करने से पहले जो प्री डिपॉजिट किया जाता है उसमें कमी की गई है। कमी तो की गई है ट्रिब्यूनल के लेवल पर, फर्स्ट अपील में कोई कमी नहीं की गई। फर्स्ट अपील में जो 10% पहले था वो 10% अब रहेगा, पर ट्रिब्यूनल लेवल पे 20% पहले जमा करना पड़ता था डिस्प्यूटेड टैक्स का। हालांकि अभी तो ट्रिब्यूनल बने ही नहीं है, अब बनेंगे तब 10% की बात आएगी, तो अब वो सीमित करके 10% कर दिया गया है। मेरा ये कहना है, टू अलाउ अ फेयर ट्रायल ऑफ द केस, there should not be any pre-deposit, जैसा कि यूपी ट्रेड टैक्स एक्ट में, यूपी वैट एक्ट में और बहुत सारे एक्ट्स में ये प्रोवाइडेड। कोई प्री डिपॉजिट की बात नहीं, यदि था भी तो वो वेवर करने की पावर अपीलेट अथॉरिटी के पास फर्स्ट अपीलेट लेवल पे भी थी और ट्राइब्यूनल लेवल पे भी थी। यहां वेवर की पावर अपीलेट अथॉरिटी को जीएसटी में नहीं दी गई कि 10% के प्री डिपॉजिट को वो वेव कर। दैट इज अ प्री रिक्वायरमेंट टू फाइल दी अपील। मान लिया किसी छोटे व्यापारी का जिसके पास फाइनेंशियल सोर्सेज नहीं है, उसके ऊपर अनाप शनाप तरीके से एक नाजायज टैक्स 1 करोड़ का लगा दिया जाता है, तो 10 लाख रुपया उसको चाहिए पहले अपील में, अपील फाइल करने से पहले, कि वो वहां डिपॉजिट करे।
तो ये एक बड़ी एक असमंजस वाली स्थिति बन जाती है कि रिलीफ कहां से ले, फिर उसे हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, और वहां भी जाके एक छोटे व्यापारी का हिम्मत नहीं पड़ती एक तो, और सबके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है। तो ये जो प्रोविजन है मेरे विचार से एक फ्री और ट्रायल के लिए, एक अच्छी जुडिशरी सिस्टम के लिए ये जो प्री कंडीशन है ये हटनी चाहिए। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील के बारे में एक अमेंडमेंट किया गया है, वो ऑब्वियस है, अभी तक ट्रिब्यूनल बनेंगे, अभी तो नोटिफिकेशन हुआ है। और बड़ी अच्छी बात है, गाजियाबाद निवासियों के लिए एक अच्छी खबर है कि गाजियाबाद में एक बेंच, फुल बेंच का यहाँ प्रोविजन है, नॉट अ सर्किट बेंच। सर्किट बेंच आगरा और इलाहाबाद दी गई है। यूपी के लिए मेन बेंच वुड बी इन लखनऊ, and the other bench would be in Varanasi and Ghaziabad. So Western UP would be fully covered with Ghaziabad bench. अभी jurisdiction तय नहीं हुआ है किन किन रीजन और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लिए जाएंगे इसमें, but Western UP would be fully covered in this. एक एमनेस्टी स्कीम सेक्शन 128 नया सेक्शन डाल के इसमें की गई, 128 कैपिटल ए डाल के की गई है। ये अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है अरविंद जी, तो इसको हम कभी अलग से करेंगे, क्योंकि एमनेस्टी स्कीम फेवरेबल है, लोगों के समझने की जरूरत है, तो इस पर एक चर्चा एक दिन अलग से की जाएगी, समय कम है तो क्योंकि 7 बज चुके हैं, आपका कार्यक्रम समय से होता है, तो मैं अब यहाँ समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, सभी लोगों का, आपने बहुत ध्यान से सुना, और मैं समझता हूँ कि कुछ प्रश्न भी जरूर होंगे, तो अगर अरविंद जी की परमिशन हो, रवि साहब की परमिशन हो, तो कुछ प्रश्न अगर जिज्ञासा हैं तो प्लीज लेट अस नो, हो सकता है कि मैं आपकी कुछ जिज्ञासाओं का निदान कर सकूं। किसी का कोई प्रश्न बनता है तो पूछ सकते हैं आदरणीय मुकुल जी से भी, रवि कुमार साहब। मुकुल जी, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही बनता है कि जैसे जैसे कोई लॉ सेटल होता है उसको अनसेटल कर देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इस समय यही हो रहा है, क्योंकि जो मर्जी आ रही है इनको कर रहे, जिस स्प्रिट के साथ और जिस स्कीम के साथ जीएसटी, जिस सोच के साथ जीएसटी जेटली साहब ने शुरू किया था, वो छिन्न भिन्न होती नजर आ रही। क्योंकि इतने अमेंडमेंट, इतने रूल्स कहाँ से वो व्यक्ति एक्ट कर पाएगा, कहाँ कर पाएगा, मतलब ये ब्रेन में रहेगा मतलब। क्योंकि इसमें एक बात और भी, जब तक किसी पे स्पेसिफिक क्लाइंटेज नहीं होगी तो वो स्पेसिफिक नॉलेज को कहाँ डेवलप करेगा सर, स्पेशल जी। कैन यू स्पीक ए वर्ड? जी श्योर। मुझे आगे जी, मैं लेट मी थैंक मुकुल जी फॉर ए वेरी इंटेलिजेंट प्री डिस्पोजल ऑफ द ऑल इंडिविजुअल प्रोविजन। मुझे एक दो बातें उसमें ऐड करनी है। एक तो 11A में अभी जो आई ना, समना सॉरी, जो समन्स के बारे में बात आई है कि नाउ द रिप्रेजेंटेटिव कैन, उसकी जो प्रोविजन है उसमें एक दे कॉशन फॉर द एडवोकेट्स एंड सीएस कि उन्होंने बुलाया और आपने सीएफओ को भेज दिया, पर जो रेड है या सर्वे है उसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है, स्टेटमेंट होती है फैक्ट्स के बारे में। इनकम टैक्स में भी रेड होती है तो उसमें अलाउ नहीं करते स्टेटमेंट, तो उसी जो जीएसटी नंबर होल्डर है उसी की होगी, तो उसमें स्टेटमेंट अगर देते हैं तो कितनी वो, दे आर नॉट अलाउड टू गिव द स्टेटमेंट, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट्स, और इफ दे आल्सो दे हैव टू प्रूव द वर्ड्स आल्सो। तो इसमें एक क्वेश्चन रहेगी कि अगर सर्वे उसमें बुलाया जाता है तो उनको भी जाना पड़ेगा साथ में। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोफेशनल टू टेक देम अलाउंग। वन सेकेंडली, जो आपने अभी 11 इसकी पावर की बात की ना, ये कि दे हैव टू, जहां पर एनोमली ऑफ लॉ रही है तो गवर्नमेंट को, आई पर्सनली फील दैट दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द जीएसटी नंबर होल्डर ओनली। रीजन बीइंग कि जैसे अभी ईएनए वाली बात आई है, जहाँ क्लासिफिकेशन का थोड़ी एनोमली रही है, कुछ लोग जीएसटी दे रहे हैं, कुछ वैट दे रहे हैं, तो जो इस पिछले पीरियड में रही ऐसे एनोमली, तो जो स्टेटस को की मैंने बात कही है, तो गवर्नमेंट ने ऐसे पावर ले ली है। और इसमें क्या बात है, वर्ड गवर्नमेंट लिखा है सेक्शन में। अब गवर्नमेंट मीन्स the chairman of the board of taxes, or no means government means, अब उसमें this power should be delegated to the
जैसे सीबीडीटी चेयरमैन को पावर ना, आई फील दे शुड बी सिंप्लीफाइड ना, No. अदरवाइज क्या गवर्नमेंट तो आप मिनिस्ट्री को आप रिप्रेजेंट करेंगे करते करते कहां पर। सो आई पर्सनली फील दैट जो वर्ड गवर्नमेंट है उसको फर्दर बाय ए नोटिफिकेशन शुड बी डेलीगेटेड टू द प्रिंसिपल कमिश्नर और टू द सीबीडीटी चेयरमैन, कैसे भी इसको नहीं, दिस इज हाउ, तभी तो फायदा होगा ना, अदरवाइज तो देखिए, ये मामला सालों लटक जाएगा। लेट मी ये आई फील क्योंकि इतना मींस आई इसकी फील जो दिस। चर्चा हुई, ये बड़ी अच्छी चर्चा हुई थी उसमें सीबीडीटी सीबीआईसी के दोनों चेयरमैन बैठे थे, रेवेन्यू सेक्रेटरी उसको चेयर कर रहे थे मीटिंग को। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट साहब ने पूछा इस पर क्वेश्चन, तो सीबीआईसी के चेयरमैन कुछ बोलना चाह रहे थे, उन्हें एकदम रोक दिया कि मैं दूंगा इसका, क्योंकि ये मेरे से संबंधित है। और उसमें ही उन्होंने कमिटमेंट किया था, या एक बात बहुत पुरजोर कही, एक तरह से एक अब भरोसा दिलवाया भारत की जनता को कि वो इस प्रोविजन का यूज बहुत स्केर्सली करेंगे। उन्हें इसकी सेंसिटिविटी का पता है कि कैसे इसका इतना मिसयूज किया जा सकता है। तो प्रिंसिपल कमिश्नर को देने की तो कोई बात ही नहीं उठती। देखिए जीएसटी, मेरा कहना है गुड जीएसटी फॉर नहीं इंडस्ट्री है ना। नहीं सर, गुड ऑफ इंडस्ट्री नहीं बनेगा। वो फिर थैली का खेल बन जाएगा। जैसे आपने पुरानी गवर्नमेंट में भी देखा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि जो चाहता था वो एक नोटिफिकेशन करा लाता था। और वो नोटिफिकेशन क्या होते थे, 6 महीने के लिए किया, 1 महीने 1 साल के लिए किया, फिर पलट गया, फिर आप जाइए उनके पास लेके। और लिकर लॉबी में तो बहुत ही ज्यादा था। आप मुस्कुरा रहे हैं। तभी करा लिया भाई, कहां से बात बनती है। जैन डिस्टोरी को एसएलपी, अच्छा एसएलपी पेंडिंग पड़ी है अभी सुप्रीम कोर्ट में, उसके जी। बावजूद भी हुआ है। एक पॉइंट और मैं रखना चाहता हूँ विद्युत, ये जी जो सर। सर्कुलर ट्रेडिंग वाली बात है, मीन फेक रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे करोड़ों रुपए का इविजन आ रहा है आईटीसी का, उसके बारे में दी रजिस्ट्रेशन जो ग्रांट किया जाता है, जिम्मेदारी जो है वो अधिकारी की है कि उन्होंने सर्वे किया है अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ द प्लेस ऑफ द डीलर, अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ द पर्सन। तो रॉन्ग आधार कार्ड लेके या बैंक लेके जो किया है, इसमें जिम्मेदारी जो लोगों को फंसाया जा रहा है उसमें अधिकारियों की जिम्मेदारी नापनी चाहिए, तभी ये जो इतना इवेजन रोज सर्कुलर ट्रेडिंग का आ रहा है दैट क्लियर। ठीक है, थैंक यू। एनी क्वेश्चंस आई थिंक चलिए, और ये किसी का बात मैं आपकी बात बड़ी करूंगा रवि जी, ये बिल्कुल आपकी सही बात है। और मैं तो लिख के दे रहा हूँ ये, कि जिस जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर ने रजिस्ट्रेशन दिया, जिस जुरिस्डिक्शन ऑफिसर ने उसकी 3 साल तक रिटर्न्स को स्क्रूटनाइज किया, उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिए? कुछ नहीं। चलिए मैंने तो जो भी काम किया वो उस ऑफिसर के भरोसे पे किया, क्योंकि उसने रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया। कॉमन पोर्टल पर वो उस आउटपुट सप्लायर का रजिस्ट्रेशन मुझे नजर आता है, तभी मैं उससे खरीदता हूँ। उसने टैक्स इनवॉइस इशू किया, मेरे 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है। वो सारी बातें उसके भरोसे पे तो की मैंने। नहीं, पर ये जिम्मेदारी किस पर होती है इसमें, इससे बड़ा एग्जांपल नहीं होगा। जो आईएएस और बेसमेंट में पानी भर के लोग मर गए हैं, उसके लिए जो गाड़ी वहां से निकली उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया कि तुमने गाड़ी तेज चलाई थी। तो एमसीडी ने वो पानी को दिस इज नोटिस द किया लिमिट, ना, कोर्ट ने उनको बेल दे दी है कि जो पानी गाड़ी को तेज नोटिस चलाई है उसके ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया उन्होंने। नहीं, उन्होंने देयर कहा विल कि नो पानी बेटर, को नोटिस, अगर बस चलता पानी को नोटिस दे देते ना। कोई एमसीडी नहीं, कोई नहीं, मजाक बनाती है, मजाक बनाते हैं। नो अकाउंटेबिलिटी, नो अकाउंट सर। AIFTP is after this that the officers must be accountable for all tax department officers। और हमने बहुत अच्छा बड़ा रिप्रेजेंटेशन एक कर रखा है इस बार, और रिपीटेडली मैं ये बात करता हूँ। अगर अकाउंटेबिलिटी आ जाए तो करप्शन खत्म हो जाए, वन स्ट्रोक। चलिए सर, और कोई किसी का प्रश्न पूछ सकते हैं? बताइए। नहीं तो फिर बाद में एक एक के साथ धन्यवाद देंगे तो सबसे। रवि तो एक चीज बताइए, जो अभी आपने समन पे कहा आपने, तो समन में जी, जो रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव में तो क्या उनके एम्प्लॉय होंगे या कौन होंगे, या एडवोकेट्स ही होंगे जो समन जा सकते हैं? एनीबॉडी ना, एनीबडी? कुड बी एनीबॉडी, उसमें जो एक सुना है, डेफिनेटली। उसमें एक बड़ा है कि मैं सत्य बोलूंगा, तो सत्य क्या पहले नहीं बोलते थे क्या? नहीं, एनीबॉडी नहीं, नहीं, आप पॉइंट है कि क्या आप एज ए लीगल फोरम हम्म। आप ये एडवाइस करेंगे कि जो फैक्ट्स ऑफ द केस है उसके बारे में आपका सीए एडवोकेट
उसकी जिम्मेदारी है स्टेटमेंट देने की। क्यों देंगे आप? बस वही तो मैं कह रहा टैक्स हूँ, के क्यों बारे में देंगे, बस वही देखिए, तो मैं कह रहा हूँ। जहाँ सर्वे होता है कुछ ना कुछ तो धीरे धीरे, तो ये जिम्मेदारी जहाँ तो फायर होती धुआं तो होता है, कुछ तो बात होती है ना। ये जिम्मेदारी तो उन्हीं की होनी चाहिए सर। ये तो इसके लिए क्या है जिम्मेदारी उन्हीं की होनी कि चाहिए, ये ना बात कि एडवोकेट्स की। सम्मन के लिए उन्होंने कहा भाई एमडी कंपनी का नहीं आएगा या सीएफओ नहीं आएगा, आप चले गए करने के लिए। पर ये आपकी एक इनर वर्किंग की कॉन्शियस है कि आप कभी भी जिम्मेदारी स्टेटमेंट देने में न एक्सेप्ट करें। आप बोले साहब जो फैक्ट्स की बात है उसके लिए कंपनी का आदमी आएगा, ये बस बात वही है ना। दिस इज माय नहीं, माय जैसे फीलिंग अबाउट। जैसे फॉर एग्जांपल नहीं, हम लोग क्या करते हैं, जो ईमेल आईडी होती है वो कंपनी की या जो एसएससी उसी के रखते हैं ना सर, नंबर भी उसी का रखते हैं, तो हमें कायदे में उसी की जिम्मेदारी रखनी चाहिए सर, ताकि इसको इन्फॉर्मेशन मिले। चलिए साहब, आदरणीय किसे के साहब, धन्यवाद के साथ। शेख साहब हमारे अमृतसर से हैं, एडवोकेट हैं शेख साहब। नेब साहब कर रहे हैं, धन्यवाद किधर है? नहीं, नेब साहब चलेगा सर, वो सीकरी साहब, शेख साहब अमृतसर से हैं, एडवोकेट। सर धन्यवाद अरविंद शर्मा साहब जी। आज सीए रवि कुमार जी ने काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन किया और मेजर टाइम 20 मिनट्स तो सीए साहब ने ले लिए और काफ़ी अच्छा इन्होंने मतलब कि डिस्कशन स्टार्ट करी। काफ़ी जो डिफ़िकल्ट मुद्दे निकले जीएसटी बजट के अंदर, तो बहुत अच्छा इनका डिस्कशन रहा। और उसके बाद मुकुल गुप्ता जी ने भी, एडवोकेट मुकुल गुप्ता जी ने भी काफ़ी बर्निंग इश्यूज जो बजट में निकाल के आए हैं, तो इनके ऊपर फर्दर डिस्कशन होना चाहिए और गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए ताकि इससे करेक्शन कर सके। अगर ये करेक्शन नहीं करेंगे तो मतलब कि हम तो पिस जाएंगे इससे। तो आज की ये डिस्कशन बड़ी फ्रूटफुल रही और बहुत बहुत धन्यवाद सीए साहब रवि कुमार जी का और एडवोकेट मुकुल गुप्ता जी का कि ये इश्यूज उठाए आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहता हूँ ऐसे इश्यूज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आने चाहिए ताकि जो भी जीएसटी में इन करेक्शंस आई हैं करेक्शंस हो सके। और आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय किसे, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रवि कुमार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुकुल गुप्ता जी, आपने समय निकाल समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि समय निकाल समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं, आज का विचार, किसी के साथ हो तो नजर आओ, किसी के साथ हो तो नजर आओ, किसी से नाराज हो तो नाराजगी दिखाओ। वाह वाह, बहुत बढ़िया। किसी के साथ हो तो नजर आओ, किसी से नाराज हो तो नाराजगी दिखाओ। याद रहे, खामोशी से जिंदा रहने वाले रिश्तों की मौत भी बहुत खामोश होती है। अरविंद जी, आपका समय 1 मिनट में है, इसमें आपका बंद हो जाता है बात। कैन आई स्पीक फॉर अ व्हाइल? ये जो आपने कहा जो नाराजगी दिखाओ, मुझे आगे है कहने की कि जो नाराजगी की बात है उसमें एक उर्दू की कथा है कि हम दुश्मन को भी कितनी पाकीज़ा सजा देते हैं, मुंह से नहीं कुछ कहते, नजरों से गिरा देते हैं। मुंह से नहीं कुछ कहते, नजरों से गिरा देते हैं। तो लिहाजा जिंदगी का ये कि आप जिससे नाराजगी हो दिल में रखिए और उससे बातचीत, उससे आगे दिल में बात रखिए। मुंह से कहने की बात आज का जमाना नहीं है। शुक्रिया। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शायर ने कहा है कि सच कहना एक इबादत है, सच कहना एक इबादत है, मगर ये मत बोलो को अंधे को अंधा उसको मुंह पे नहीं कहते। आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एनीवे चलिए, आइए तीनों ओम का उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव
शांति सामा शांति रेधे ओम शांति शांति